Thank God for this one more new day we have that I've seen in life. और प्रभु का धन्यवाद एक नया दिन जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। When you said to me, come and share the word of God, I share my life. So it's not about God shares His word and He speaks, and He speaks. और जब मैं इस वचन से यहाँ पर बताने के लिए खड़ा होता हूँ, मैं अपने अपने जीवन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर बताना चाहता है। No, uh, God's word is the most powerful thing. It can change things. परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थी है जो बातों को बदल सकता है। When I was sitting, like hearing people pray that God will give the right word. और जैसे यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे लोग कि प्रभु एक सही वचन को दे, Like there's a hunger inside. और हमारे अंदर एक भूख है। So one prayer is coming, God, I have to come and say, but I don't know what to do. प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, प्रभु वचन को बांटने पर मैं नहीं जानता कि क्या प्रभु। It's sometimes that a fear comes inside. Like what I'll go and stand and speak over there. और एक भय अंदर आ जाता है कि वहां पर आकर जाकर मैं क्या किस चीज को बांटूं। But still, I really pray that God will speak to our hearts. और यही प्रार्थना के साथ कि प्रभु सच में हमारे हृदयों से बात करे, That He can change. We can draw more nearer to Him day by day. और ताकि हम और उसके नजदीक और अधिक दिन प्रतिदिन उसके नजदीक आते जाए। While we were singing, like my sister sang a song about, first it's not like it will be first you seek and you'll find, then knock and it will be opened. और जैसे उस गीत को हमने उस आराधना के समय में जैसे बहन ने गाया कि जैसे हम आप मांगोगे मिलेगा, आप खटखटाओगे तो आपके लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मैं चिल्ड्रन सिंगर सुन लो, मेरी छोटी जीवन गाड़ी को तू ही चलाना प्रभु. So all these songs, like I was listening to Brother Zach's message in the day before yesterday, I think so. It's a very old message, but it says, like whatever we speak, whatever we sing, it should be there in our hearts. और जैसे मैं भाई जैक को भी पिछले दिनों में सुन रहा था कि जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ भी हम गाते हैं, हमारे हृदय से अर्थ के साथ उन बातों को हम देखें या उसको जाने। There's one life that God has given us. That let me seek Him. We may know Him. Like Brother said, like what is eternal life? Eternal life is knowing Jesus, knowing God. और ये एकमात्र जीवन हमको दिया गया है जिसमें हम परमेश्वर को खोज सकते हैं, मांग सकते हैं। जैसे हमने अनंत काल के बारे में पढ़ा कि वो क्या है, वो परमेश्वर यीशु मसीह को, पिता को जानना है। There were two examples in the Bible which I was reading. One was we read Malachi. और मलाकी की पुस्तक के अंदर जब हम देखते हैं दो वहां पर घटनाएं या उदाहरण वहां पर दिए गए हैं। First, it is go to verse chapter 2 and verse number 5. दूसरा अध्याय वचन 5, मलाकी दूसरा अध्याय वचन 5। He speaks about it's Levi. और यहाँ पे जो लेवी जो लोग हैं उनके बारे में बात किया है। Says, my covenant with him was one of life and peace. मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी है वह जीवन और शांति की थी। I gave them to him as an object of reverence, so he revered me and stood in awe by my name. और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे और उसने मेरा भय मान भी लिया। True instruction was in his mouth and unrighteousness was not found in his lips. उसको मेरी सच्ची शिक्षा कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिलता की बात निकलती न थी। He walked with me in peace and uprightness. वह शांति और सिधाई से मेरे संग चलता था। And he turned many back from iniquity. और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। He speaks about Levi, like the first thing is says God, he says, I have given him life and peace. लेवी के बारे में यहाँ पे जो लिखता है कि मैंने एक वाचा उनके साथ बांधी है जो जीवन और शांति की है। That life, I was thinking of what life had been given and what peace. और मैं सोच रहा था ये जीवन, ये शांति की वाचा, ये क्या है यहाँ पे। If you read this, he says, if another version, he says, he walked with God, Levi. वहां लिखा है कि वे परमेश्वर के साथ चले। So first thing was he was there, he lived in the presence of God. और पहली बात वे परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। Second thing is God had given him a life, made him known the life. और परमेश्वर ने अपना जीवन देकर उन्हें अपना जीवन प्रकट किया। And when they lived that life, there was peace in their hearts. और जब वो जीवन को वो जीते थे तो उनके हृदय में वो शांति आती थी। And that what happened, they walked uprightly.
और इसके कारण वे बहुत ही धार्मिकता से जीवन को जीते थे। And second thing, what life they lived helped other people, go away from iniquity. और वहां पर जो जीवन जो जीते थे उसके द्वारा अन्य लोगों की सहायता होती थी। God has also given us a life. प्रभु ने हमें भी एक जीवन दिया है, He's also promised the same peace to us. वही शांति उसने हमारे लिए भी प्रतिज्ञा की है। How we live it? कैसे हम जीते हैं, We walk the same way, or we walk the other way. और क्या हम इस रीति से चलते या दूसरी तरफ चलते हैं। There's one more verse in example in Genesis और उत्पत्ति की पुस्तक में chapter 6. 6 अध्याय 6 and verse 6 to 9. उसका 6 से 9 वचन, उत्पत्ति 6 अध्याय वचन 6 से 9। It speaks here about the days of Noah. It speaks about that Lord was sorry that he made man on earth, and he was grieved in his heart. The Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, from the man to animals to the creeping things and the birds of the sky. For I am sorry that I have made them. और उत्पत्ति 6 और 6 से आगे वचन, और परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। See, it's given away like God was, He saw all this iniquity, He saw this sin that is going on, all this people living a sinful life, an evil life. और परमेश्वर ने यहाँ पर दुष्टता को देखा कि कैसे पाप और वहाँ के लोग किस प्रकार की बुराई में जीवन को जी रहे थे। It came to a place where He said, why did I make this? No, I made this, but as time has come, I have to end this all. और एक समय ऐसा है कि जहाँ परमेश्वर खेदित, तो क्यों मैंने इन लोगों को बनाया, मैं अभी इनको अंत करने पर हूँ। But you see the next sentence says, but Noah found favor in the eyes of the Lord. और 8 वचन में हम देखते, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। Noah was a righteous man, नूह जो है धर्मी पुरुष था, blameless in his time, और उन समय के लोगों में खरा था। and Noah walked with God. और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। He says it's come to an extreme thing, like where God says, no, enough is enough. I have to end all these things. और वो बहुत ही अंतिम छोर पर बातें आ गई, जहां परमेश्वर कहता है कि बहुत हो चुका, अब मैं सब कुछ नाश करने पर हूँ। But there was this one man, Noah. एक व्यक्ति है जो नूह है। Like God says, God found favor for him, like because he lived a right life, and you see the second part says he walked with God. क्योंकि इस व्यक्ति ने एक धर्मी पुरुष का जीवन उसने जिया, परमेश्वर के साथ खरा चला, और परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि इस पर बनी रही। No. So I was thinking, like, what when it comes to a place when God has to judge my life. और अगर ऐसा एक स्थान जहां पर आ जाए, जहां परमेश्वर को मेरा जीवन यदि जांचना हो, मेरे जीवन का न्याय करना हो, When I go and stand before Him, can God say favor in me? और क्या जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहूंगा तो क्या परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि मैं पा सकूंगा? क्या God can say this? No, I have given him Santosh this peace, and I have given him life. और क्या परमेश्वर मेरे बारे में कह पाएगा कि मैंने संतोष को वो जीवन और वो शांति दी थी, He walks uprightly. और वो पूरी तरह से धर्मी बनकर चलता है? No, he hates iniquity. और पूरी तरह से अन्याय या दुष्टता से बैर रखता है। And by the way he lives, people who see him, are changed. Their lives is changed. और जिस प्रकार से वो जीवन को जीता है, जब लोग उनको देखते हैं तो उनका जीवन भी बदल जाता है। I was thinking about that. Think on that basis. God has given us life. He's a plan for us. It's just not because He's made somebody made 100 people or 20 people, but it's everybody that God has made. He has made the plan and a purpose. और परमेश्वर ने हमको ऐसे ही नहीं बना दिया कि चलो मैं 100 लोगों को बना देता हूं, लेकिन परमेश्वर ने जब हमको बनाया, हम सभी के लिए एक विशेष योजना को परमेश्वर रखता है। One more verse, and if you read the life of Elijah, यदि हम एलिया के जीवन को देखते हैं, the two verses are saying, one was in 17:1, 1 Kings 17:1. पहला राजा 17 अध्याय वचन 1, पहला राजा उसका 17 अध्याय वचन 1 says, and Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, as long as the Lord of God Israel lives, before
whom I stand. There shall be no dew nor rain these years except my word. और वहां लिखा है, तिशबी इलिया जो गिलाद नाम का निवासी था, उसने अहाब से कहा, इसराइल का परमेश्वर जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। Specifically, if I go to that thing, is as the Lord God of Israel lives, before whom I stand. और वहां लिखा है कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में खड़ा रहता हूं, उपस्थित रहता हूं। And one more verse in 1 Kings 18:15. और पहला राजा 18 अध्याय वचन 15, It says, I swear by the Lord Almighty, in whose presence I stand. और वहां लिखा है कि एलिया ने कहा कि सेनाओं के यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूं, उसके जीवन की शपथ। There's two verses I was thinking where he says, before whom I stand. ये दोनों ही वचनों में एलिया जिस प्रकार कहता है कि जिसके सम्मुख में उपस्थित या खड़ा रहता हूं। Because when he was saying these words, which God had given, he knows that God is, is there beside him. He's standing in front of God. और जब ये शब्दों को वो कहता है तो उसको पता है कि वो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, परमेश्वर उसकी ओर है। The presence of God was always there with him. और परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर उसके साथ थी। It is not like when I go to work, God is not there, or when I am at home sleeping, God is not there. A certain period when I come to church, God is there. और ऐसा नहीं कि मैं घर पर सोता हूं या काम करता हूं तब परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, लेकिन जब मैं कलीसिया में आता हूं तब परमेश्वर की उपस्थिति, कोई खास समय पर ही परमेश्वर की उपस्थिति, ऐसा नहीं। The presence of God with us is there all the time. परमेश्वर की उपस्थिति हर समय हर जगह पर हमारे साथ होती। The words I speak, when I say something, it's there when I stand before Him and pray. और Say. जब मैं उन शब्दों को बोलता हूँ, उन शब्दों को बोलते समय प्रभु की वहां पर उपस्थिति है। जब मैं लोगों के सामने बैठता खड़ा होता हूँ, वहां पर भी है। And when He is there, then have the confidence to speak. और जब परमेश्वर वहां पर मेरे साथ है, इस कारण से मुझे एक हियाव होता है बोलने का। When even in Elijah's case, when he was standing there, he had that confidence that God is there with me. I can speak. क्यों जब एलिया भी जब वहां पर खड़ा होता था, क्योंकि उसको ये पता था कि परमेश्वर उसके साथ खड़ा है, इसके कारण उसको बोलने का एक हियाव मिलता था। But when I come to my life, do I have that boldness to go and stand before Him? लेकिन जब मैं अपने जीवन के बारे में सोचूं तो क्या परमेश्वर के सामने खड़े रहने की निडरता या वो हियाव मेरे पास है? No, see, where do I stand? I stand with God or I stand with the world? और कहां पर आज मैं खड़ा रहता हूं? क्या कि मैं परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में खड़ा रहता हूं या फिर मैं संसार में खड़ा रहता हूं? When Jesus says about money, He says you will either love one and despise the other. You can't love both together. और यीशु मसीह ने जैसे कहा कि तुम पैसों से प्रेम करोगे या फिर परमेश्वर से घृणा करोगे, दोनों से आप एक साथ में दोनों की सेवा नहीं कर So when सकते। I'm coming to be with God is either I be with God or I be with the world. और ऐसे ही परमेश्वर के पास जब मैं आता हूं, मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रह सकता हूं या फिर दूसरी ओर मैं संसार में रहूंगा। Like I can't be double-minded or I can't stand in. You can say you can put your both your legs in one boat and another boat. मैं दोनों ही दोहरे जीवन को नहीं जी सकता, जहां पर एक पैर मेरा एक नाव में, दूसरा पैर मेरा दूसरी नाव में, इस प्रकार का नहीं। Even if you see, read Revelations, like Jesus wants a church, of this double-minded people, प्रकाशित वाक्य में भी यीशु कलीसिया को चेतावनी एक देता है कि जहां दोहरे मन के लोग होते हैं उनको चेतावनी देता है। Says if you are neither hot nor you are cold. और वहां लिखा है न तू गर्म है न तू ठंडा है। It says I'll spew you out of my mouth. और वहां कहता है मैं मेरे मुंह से तुझे उगलने पे हूं। So main thing when I think like daily thing is I see myself where I am standing. और प्रतिदिन मुझे अपने आप को देखना जांचना है कि आज मैं कहाँ खड़ा हूं। There's a verse in Psalms. और एक वचन है जो भजन संहिता Psalms 24. और जो भजन संहिता 24 में है, Verse 3 and 4. 3 और 4 वचन। It says over here, who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in the holy place? He who has clean hands and a pure heart, and who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. और वहां लिखा है भजन संहिता 24 3 और 4,
परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। So you're given three things. One is who can who can go to the hill, and who can stand before God is one who has clean hands. Second, a pure heart. और यहाँ पे लिखा है तीन चीजें यहाँ पे जैसे लिखी, पर्वत परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। पहला इंग्लिश में लिखा है कि जिसके हाथ पूरी तरह से निर्दोष है, दूसरा जिसके हृदय शुद्ध है, And third is it says about who has not lifted his soul to an idol. और वहां पे तीसरा जो इंग्लिश में लिखा है कि जिसने अपने मन को मूर्ति की ओर नहीं उठाया है। And fourth is sworn deceitfully. और यहाँ पे चौथा बान लिखा है कि उसने कपट से शपथ नहीं खाई है। Are my versus clean handles are my transaction which I'm doing, my life which I live in the world is clean. और क्या मेरे हाथ शुद्ध है? क्या जो कोई व्यवहार में संसार में करता हूं क्या वो पूरी तरह से शुद्ध है? Do I when in anything I consult God and do it? और क्या सारी चीजें जब मैं करता हूं क्या मैं परमेश्वर से सलाह को लेता हूं और तब मैं करता हूं? Second thing is my heart pure? Like there's no deceitfulness, and I mean, I think there's no wrong thing in my heart. और क्या हमारे हृदय शुद्ध है? क्या किसी भी प्रकार का कपट है या कोई गलत हमारे हृदय के अंदर है? Sometimes you get this messages, like so and so person is not well, or please pray. और कई बार हमें कोई संदेश मिलते हैं कहीं पे कि ये भाई और ये बहन की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। I was searching my own self, like when I see this brother is not well. Okay, just pray, oh God, so and so, this person I keep in your hands, and just heal him. और जब मैं उस मैसेज को पढ़ता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, भाई ये बहन या बहन जो बीमार है, प्रभु आप उसको चंगाई दे। But there's one thing, which says, do you pray from your heart? Is there a burden in your heart? लेकिन क्या हम उसके लिए सच में वास्तविकता में एक बोझ के साथ उस भाई और बहन के लिए प्रार्थना करते हैं? Like if you have a cut in the finger, और यदि आपके हाथ में छोटा सा कट लग जाता है, कुछ जख्म लग जाता है, like the blood is flowing. The first thing is you go and rush. You first go put in a water for the blood to wash off, and then you put some band-aid or something. You're so fast to it because the finger is part of your body. क्योंकि ये जो आपकी उंगली के अंदर कट लग गया है और खून बह रहा है, वहां पे तुरंत आप जाकर उसको धोएंगे, कुछ बैंडेज को लगाएंगे, क्योंकि ये शरीर की ये उंगली जो है, आपका देह जो है, आपके शरीर का एक अंग, एक भाग है। So also is your brother and sister a part of the body of Christ. और उसी प्रकार आपके जो कलीसिया में जो भाई और बहन जो है, वो उसी प्रकार आपके देह, आपके शरीर के ही एक अंग या भाग है। So is my prayer that same way, like God first let me in this wash it and let that wound be healed fast. और क्या प्रभु के सामने प्रभु से मिलते, प्रभु इस घाव को प्रभु मुझे धोने दे, उसको पूरी तरह से अच्छा होने दे प्रभु। That prayer inside my heart, God let that sister brother first be healed and they may come more closer to you. और प्रभु से हम बोझ के साथ प्रार्थना करते, प्रभु इस भाई और बहन को प्रभु आप चंगाई दे और तेरे और नजदीक ये भाई बहन आने पाए। Let your comforting hand be upon him. और प्रभु तेरा सांत्वना देने वाला हाथ उनके ऊपर पाया जाए। God sees that. God doesn't see you pray, but God sees our hearts in every situation. Forget just a prayer part of it, but with everything that we deal in day to day, God sees our hearts. और प्रभु हमारे प्रार्थना या हमारे शब्दों से बढ़कर हमारे हृदय को देखता है उस बोझ के साथ कि हम किस प्रकार हमारे दिन प्रतिदिन में उसको करते हैं। Third is idols. और तीसरा यहाँ पे जो लिखा है कि जो मूर्तियां पाई जाती है। Idols not necessarily mean I go and worship an idol, but there are many idols we have heard and many brothers and sisters sharing, like might be our work, might be something, a hobby, anything that comes between me and God is an idol. और जब हम मूर्तियों के बारे में बात करते हैं, हम शारीरिक मूर्तियों के सामने तो नहीं झुकते हैं, लेकिन हम जैसे सुनते हैं बहुत सारी मूर्तियां हो सकती है, हमारा काम हो सकता है, पैसा, किसी भी प्रकार की ऐसी बातें जो परमेश्वर और हमारे बीच में आने वाली बातें एक मूर्ति के समान होती है। A small example, like a mobile phone. और एक छोटा सा उदाहरण, एक मोबाइल फोन ले लीजिए। I have seen myself, like sometimes that I got that addiction in between, I used to sit and watch that, open YouTube and watch that short reels.
और कई बार वो मैं मोबाइल को लेता था और बस उसमें देखता रहता था, उस यूट्यूब को निकाल के शॉर्ट रील्स जो आते हैं, छोटे छोटे जो वीडियो आते हैं, उसको एक के बाद देखता हूँ। And once you start, like 1, 2, 3, and continuously go and sitting and you go on watching at a stretch of 20, 25 minutes, and you don't know exactly you spend that much time in that area. और जब आप उसको ओपन करते हैं और उस रील को 1, 2, 3 आप देखते जाते, एक के बाद दूसरा देखते जाते, आपको पता तक नहीं चलेगा कि 20-25 मिनट आपने वहां पे समय गवा दिया है, आपको नहीं पता चलेगा। And it happened once, it happened twice, and then the third time I had to say, "Was God, there's something wrong in me. I am going the wrong direction." और एक बार ऐसा हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार मैंने देखा कि मैं कहीं गलत दिशा में जा rहा हूँ। So you might feel, no, it's just something that, no, nothing wrong in it, but you see that these are all small tools created by Satan to distract us from God. और ये हमें लगता होगा कि शायद ये बातें मुझे कोई पापमय नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे यंत्र या युक्तियां शैतान ने बनाई हुई हैं जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाती है। So that is, so what my thing is like that same thing as standing. Though what I do in my day-to-day life, I go and consult to God. God, is this life what I'm living is right? और इसी प्रकार जब परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने की बात आती है तो मैं परमेश्वर के पास हर चीज में जाता हूं, प्रभु से मैं सलाह को मांगता हूं, क्या ये सही है या गलत है प्रभु। No. Life is main thing is, judging about my own self. और यही जीवन में हम करते कि अपने आप को हम जांचते हैं। There was one sentence I read somewhere and just sharing with you. It says, "A simple definition of righteousness is right standing with God." और यहाँ पर एक अच्छी व्याख्या मैंने पढ़ी थी, वो इस प्रकार है कि बहुत ही सरल धार्मिकता की व्याख्या ये है कि परमेश्वर के सामने सही रीति से खड़ा होना। Many of us desire to be used by God, but fail to understand the simple requirement to stand before God's holy presence. और यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाना चाहते, वे चाहते कि परमेश्वर उनका इस्तेमाल करे, लेकिन वे परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना उन्होंने अभी तक सीखा नहीं, उस आवश्यकता को उन्होंने नहीं जाना है। Like main thing is, we'll put it in easy thing. It says, righteousness is standing in front of God. और ये धार्मिकता क्या है? ये धार्मिकता ये है परमेश्वर के सामने खड़ा रहना। And and standing, just not standing, and standing before His holy presence. और खड़े रहना नहीं, लेकिन उसकी पवित्र उपस्थिति में खड़े रहना। So this is where like I started this lately. Lately since some 7 to 8 days back. When I full day, like you're busy, certain things in the office and things happening, but when I go in the night, I try to replay my life, what I lived in the day. और 7-8 दिन पहले मैंने इस बात को करना आरंभ किया। पूरा दिन काम करने के बाद ऑफिस के अंदर जब मैं घर पर रात को जाता हूँ, पूरा दिन क्या क्या हुआ क्या नहीं वो सोचने की कोशिश मैं करता हूँ। Many things I remember, many things I don't remember. बहुत सारी चीजें मुझे याद रहती है, बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती है। But I can go and ask God that I have lived this life the full day today, but I see this many areas I fall. Like. और मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु बहुत सारी चीजें आज मैंने जीवन में की है, लेकिन प्रभु बहुत सारे क्षेत्र में मैं गिरा हूँ। If you have given 100% of the day, I think 99% I have fallen. और प्रभु मुझे लगता है कि मैंने 100% मेरे जीवन को आज जिया है, लेकिन प्रभु 99% में हारा हुआ हूँ प्रभु। But Lord, that tomorrow when I get up, I want that improvement of 1%. Like today is 99% fall. Let tomorrow be a 98%. लेकिन जब मैं कल सुबह उठता हूँ प्रभु, तो मैं और अधिक अपने आप को सुधारना चाहता हूँ प्रभु, जो आज था उससे बढ़कर मैं कल सुधारना चाहता हूँ। God wants that honesty in our lives, that we speak to Him. He's waiting. Like as I said, like sister was singing a song, knock and will be open to you, seek and you will find. और प्रभु इंतजार करता है कि हम ईमानदारी से परमेश्वर के सामने, जैसे हमने इस गीत को गाया कि जब हम खटखटाते हैं वो खोलने के लिए तैयार है। You seek and you will find. और जब आप ढूंढोगे तो आप जरूर पाओगे। But that thing comes into my place. Do I seek? Do I knock? लेकिन ये मेरे सामने है कि क्या मैं उस चीज को ढूंढता हूँ, खटखटाता हूँ। I'll end this verse in James chapter 4. याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय and verse 8 to 10. 8 से 10 वचन। It says, "Draw near to God,
and he'll draw near to you. परमेश्वर के निकट आओ और वह भी तुम्हारे निकट आएगा। Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, अपने हाथ शुद्ध करो हे पापी और दुचित्तो लोग, अपने हृदय को पवित्र करो। you double-minded. और दुचित्ते लोग, Be miserable and mourn and weep. दुखी हो, शोक करो और रो। Let your laughter be turned into mourning and your joy to gloom. तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। And last it says, humble yourselves in the presence of the Lord, and he will exalt you. 10 वचन, प्रभु के सामने नम्र बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। Here first it says, look, draw near to God. And when you come first, again it says, cleanse your hands. और जैसे पहले वहां लिखा 8 वचन में परमेश्वर के निकट आओ, पहली चीज जो लिखा है कि हमें अपने हाथों को शुद्ध करना है। And second is, purify your hearts, you double-minded. और दुचित्ते लोग, अपने हृदय को तुम पवित्र करो। These are the things God hates. और यही चीजें हैं जो परमेश्वर जिससे घृणा करता है। It says, when Jesus came to us, he came to us to give us a new life. When we pray, God, you thank you, you died on the cross, you did this. Why did he do all that? और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, यही वो करता है कि जब हम कहते हैं कि प्रभु तू मेरे लिए आया, तूने अपने जीवन को क्रूस पर दिया, क्यों उसने सब कुछ किया? No, he loves us. क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। You see, John 3:16 we read, God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया था कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो पर अनंत जीवन को पाए। First it says, whoever believes in him. पहला लिखा है कि जो उस पर विश्वास करते हैं। Believes in him what? Believe in him, just say, I know that Christ is there, not that. और केवल ये नहीं कि हाँ मैं जानता हूँ यीशु मसीह को, वो विश्वास नहीं है। I believe in what he said. उसने जो कहा है उस पर मैं विश्वास करता हूँ, उसको मैं विश्वास करता I हूँ। believe in the life he lived. जो जीवन उसने जिया उस पर मैं विश्वास करता हूँ। I believe in the promises he has set for me. और जो प्रतिज्ञाएं वायदे उसने मेरे लिए रखे उस पर मैं विश्वास करता हूँ। And I believe that life, if I live according to me, it will totally be changed. और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि उस वचन के अनुसार मैं यदि जीवन को जीता हूँ, मेरा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित होगा। When I have all these things, then I won't perish. और जब ये सारी चीजें मेरे जीवन में होंगी तब मैं नाश नहीं And होऊंगा। when I won't perish, I will have eternal life. And और जब I will be knowing, so I'll be knowing Christ, I'll be knowing God. और जब मैं नाश नहीं होऊंगा तो अनंत काल का जीवन होगा। उसका मतलब मैं यीशु मसीह को और परमेश्वर को, पिता को भी जानूंगा। There's one more verse in last verse I'll say. Yeah. 2 Corinthians chapter 5 and verse 10. दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय वचन 10। It says, for we must all stand before Christ to be judged. अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए। We will each receive whatever we deserve for the good or evil what we have done in this earthly body. कि हर व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह का द्वारा किए हो पाए। It starts with Jesus, it ends with Jesus. यीशु मसीह से आरंभ होता है, यीशु मसीह पर अंत होता And है। we say he is the author and finisher of my faith. और यीशु मसीह हमारे जीवन विश्वास का कर्ता और उसको अंत करने वाला, सिद्ध करने वाला है। So when I first come to Christ, he gives me a new life. He teaches me all things. जब मैं यीशु मसीह के पास आरंभ में आता हूँ, वो मुझको जीवन देता है, सारी बातों को सिखाता है। He is my teacher. वो मेरा शिक्षक है, He is my comforter. वो मेरा सांत्वना देने वाला है। And when I finish my course, I end my life, he is the one who is going to give me the marks. और जब मेरे जीवन को मैं अंत करूंगा तब यीशु मसीह है जो मेरे जीवन को अंक देता है। Here it says he will be there. He'll see what good I have, bad I have done. He'll deal with me accordingly. और जैसे यहाँ लिखा है कि हर व्यक्ति को अपने भले बुरे कामों के अनुसार वो बदला देगा, वही है जो वो करता है। So it's not about other things. It is about my life. How I live my life, how I go through my life. और ये अन्य लोगों के बारे में नहीं है, ये मेरे स्वयं के जीवन के बारे में कि मैं स्वयं कैसा जीवन जीता हूँ। The most important verse in the Bible is the first thing is, first you seek the kingdom of God and his righteousness. पहले बहुत ही मुख्य वचन बाइबल का ये है कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज आप करें। Other things are there, that will happen, but first I have to seek his kingdom and his righteousness. और सबसे पहले दूसरी चीजें तो है, लेकिन धार्मिकता और प्रभु के राज्य की खोज हमको सबसे पहले करना है। And last verse is, I was reading this verse from Psalms और भजन संहिता 27 verse 4.
भजन संहिता 27:4। It says it's in NLT, it says the one thing I asked of the Lord, और वहाँ NLT अनुवाद में इस प्रकार लिखा है कि एक वर मैंने प्रभु से मांगा है the thing I seek most, जिसकी मैं सबसे अधिक खोज करना चाहता हूँ, to live in the house of the Lord all the days of my life, ताकि मेरे जीवन भर, मेरे जीवन के हर दिन मैं प्रभु के भवन में रह सकूं, delighting in the Lord's perfection परमेश्वर की सिद्धता में आनंद उठाते हुए and meditating in His temple. और उसके भवन के अंदर मैं मनन करता रहूं। I was saying that, Lord, let this be my prayer. और मैं कह रहा था प्रभु ये मेरी भी प्रार्थना होने पाए, And like the days that I have in my life, और जितने दिन मेरे जीवन में बचे हैं प्रभु, that first is I'll delight in, I want to live it with you in your standing, और प्रभु तेरे सम्मुख खड़े रहते हुए मैं इस जीवन को जीना चाहता हूं, delighting in your works, your perfections, और प्रभु तेरे कामों में, तेरी सिद्धता, तेरी बातों में मैं आनंदित और प्रसन्नता खोजते हुए। Where do I do that? When I see the work that He does in my life, that's change that I get in my life. और यही कैसे होगा, जो काम प्रभु ने मेरे जीवन में किया है उसके द्वारा मैं परिवर्तित होते हुए And meditating on His word. और उसके वचन पर मैं मनन करता हूं। May God help us with that. प्रभु हमारी सहायता करे।